So today our topic is glomerulonephritis and nephritic syndrome. Uh, the major difference between glomerulonephritis and nephritic syndrome and nephrotic syndrome is actually the grade of proteinuria, the amount of proteinuria, how much protein is excreted in your urine. It's not about the etiology, it's actually based on the severity. So it's not what is the actually cause of the proteinuria. It's about how much protein is actually excreted in urine per 24 hours या जो भी आपकी कैलकुलेटिंग मेथड है. सो नेफ्रेटिक सिंड्रोम में अमेरिकन ये कहते हैं कि लेस देन 3.5 ग्राम्स in a day, but Britishers, according to nice guidelines, it is less than 3 grams per 24 hours. Less than 3 grams होगा तो फिर it is nephritic. More than 3 grams होगा तो it is nephrotic. Nephrotic with O, proteinuria. Proteinuria. Nephritic syndrome is actually characterized by the red cell casts, red blood cells in urine, red cell casts in urine. As you can see here, let's get straight to the lecture. Inflammation of glomeruli due to autoimmune events, circulating antibodies that is attacking your glomerulus as well as the tubules, but mainly glomerulus. Vasculitides, कुछ वेस्कुलाइटिस हैं, कुछ डिजीज़ हैं जो वेस्कुलिटिडीज़ करवाएंगी, मल्टीपल जगहों पे वेस्कुलाइटिस करवाएंगी, मल्टीपल आर्टरीज का, उनको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. बट फॉर नाउ हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे. अभी मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा, इसमें आपको याद नहीं रहेंगी. Edema. There are two causes of edema here. Less oncotic pressure because of the proteinuria. Moderate proteinuria in nephritic syndrome. We are not here discussing nephrotic. Nephrotic is a different topic and we'll discuss it later. We are now discussing glomerulonephritis and nephritic syndromes. Glomerulonephritis एक certain amount of proteinuria cause करवाता है, लेकिन majorly I have told you earlier, it is characterized mainly by the red cell casts in urine and moderate release of protein, moderate excretion of urine, which is less than 3 grams. If it is more than 3 grams per day, then it is nephrotic syndrome. ठीक है. सो फिर एडीमा भी होगा. वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट कॉजेज द सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन. वी थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द इंजरी टू द किडनी. इट इज द प्रोटेक्टिव measure from the kidney, it is the precautionary measure by the kidney, it is the compensatory method by your body. Like अगर हम किसी की भी बात करें तो कोई ADH रिलीज हो सकता है, रेनिन-एंजियोटेंसिन एक्टिवेट हो सकता है, सर्कुलेटरी मेथड एओर्टिक बॉडीज सेंस कर सकती हैं कि देयर इज़ लेस प्रेशर इन योर आर्टरीज. किसी की वजह से कंपनसेटरी मेथड एक्टिवेट हो सकता है, उसकी वजह से साल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो सकती है, सोडियम रिटेंशन हो सकती है, विच अल्टीमेटली कॉजेज द हाइपरटेंशन, राइट. या फिर ऑब्वियसली एज वी आर डिस्कसिंग दैट देयर इज अ मॉडरेट एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन, तो फिर लो ऑनकोटिक प्रेशर होगा, इंक्रीज्ड हाइड्रो स्टेटिक प्रेशर होगा काउंटर रेगुलेटरी मेथड में, और फिर दैट विल कॉज the intravascular fluid to go outside, and वो क्या होगा, थर्ड स्पेसिंग हो जाएगी, which causes the edema ultimately. Hematuria with dysmorphic red blood cells. Dysmorphic red blood cells का क्या मतलब है कि red blood cells जब they squeeze down from the capillaries of your glomerulus, वो dysmorphic हो जाएंगे, ठीक है. और जब ये dysmorphic को आप यूरिन एनालिसिस पे देखेंगे तो आपको रेड सेल कास्ट्स की सूरत में नजर आएंगे, ठीक है. प्रोटीनयूरिया यूजुअली लेस देन 2 ग्राम्स, बट अगर ये लेस देन 3 ग्राम्स भी हो तो हम इसे नेफ्रिटिक सिंड्रोम ही कहेंगे, नॉट नेफ्रोटिक. फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम. इफ we are holding on to water and sodium, it can't be excreted out.
ठीक है, अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो स्ट्रेट आउट नहीं हो सकता। तो फ्रिक्शनल एक्सक्रीशन जो है वो भी सोडियम की अल्टीमेटली कम हो जाएगी। हमने पहले भी इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट रीनल बायोप्सी, बहुत और भी यूरिन, इनिशियली वी गो फॉर यूरिन एनालिसिस और मल्टीपल diagnostic tests for multiple diseases, but ultimately the most accurate test ever is renal biopsy. बहुत सारी डिजीज़ हैं जी, ये आप देख सकते हैं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं हर डिजीज़ के लिए कुछ 10 लफ्ज़ आपको याद रखवाने की कोशिश करूँगा। जस्ट विल डिस्कस जस्ट 5 to 10 words of each disease so you can remember easily. एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये वेस्कुलर डिजीज़ हैं जैसे वैगिनल ग्रामेटोसिस, चेस्ट सिंड्रोम, हेनस्टॉनल परप्यूरा, पोलीआर्टराइटिस नोडोजा, टीटीपी, एचयूएस, hemolytic uremic syndrome. Actually TTP and hemolytic uremic syndrome almost similar हैं. Cryoglobulinemia, TTP and HUS मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है बाकी सारे वेस्कुलरिटीज से, ठीक है। बाकी जितने भी वेस्कुलाइटिस हैं उनसे ये टोटली डिफरेंट हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ बाकी वेस्कुलर डिजीजेज, ये वो वेस्कुलर डिजीजेज हैं जो अल्टीमेटली किडनी भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम इन वेस्कुलाइटिस को ज़रूर डिस्कस करेंगे। ग्लोमेरुलर डिजीजेज, गुडपैस्चर सिंड्रोम, पोस्ट इन्फेक्शस, ये एक करके हम डिस्कस करते हैं। मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूँ आपको, फिर हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ओवरव्यू में क्या बातें हैं, बल्कि मैं अगर आपको इस लेक्चर में ओवरव्यू दे पाऊंगा, अगर बोर्ड सामने होता तो चलो ज़्यादा बेहतर होता, तो मैं ओवरव्यू दे सकता। चलें वन बाय वन डिस्कस करते हैं, मैं फिर आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि क्या डिफरेंसेस हैं इनके। वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस। अच्छा, सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग द किडनी, लंग्स एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर हम इसको कंपेयर करें विद गुड पास्चर सिंड्रोम, वैगनर्स को, चलें दो डिजीज लेते हैं। वैगनर्स को अगर गुड पास्चर से मैं इसको कंपेयर करूं तो क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये होगा कि वैगनर्स इज ए सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस, अदर बट गुड पास्चर सिंड्रोम ओनली इन्वॉल्व्स लंग एंड किडनी, दैट्स इट। बट वैगनर्स with lung, it also involves upper respiratory tract and it is also a systemic vasculitis. What I meant by systemic vasculitis, it involves skin, renal, GI joints, right? With lungs and kidney, it involves skin, renal, GI joints also, because it is a systemic vasculitis. On the other hand, गुड पास्चर सिंड्रोम में इट इन्वॉल्व्स ओनली लंग एंड किडनी, ओनली लंग एंड किडनी। किडनी तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा, हम किडनी सेक्शन में हैं तो किडनी तो इन्वॉल्व है ही है, बट अदर देन किडनी ओनली लंग, राइट, ओनली लंग। जी, तो फिर वैगनर्स एंड ग्रेनुलोमाटोसिस में तो वैगनर्स, ग्रेनुलोमाटोसिस और गुड पास्चर सिंड्रोम में तो आपको डिफरेंस पता चल गया, ठीक है, कि वैगनर्स जो है वो इन्वॉल्व करेगा लंग में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व करेगा, ना सिर्फ लोअर रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी का क्या मतलब है? मोस्टली पेशेंट्स में जो वेस्कुलाइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस में, इनके पल्मोनरी हेमरेज होती है इनमें, और इनका सैडल नोज होता है, सैडल नोज, ठीक है, दरमियान से धंसा हुआ होता है। जैसे हम कहते हैं कि वो जो सैडल होती है हॉर्स के ऊपर, उसकी शेप बनी हुई होती है आपकी नोज की, ठीक है। तो सैडल नोज अगर है तो उसका मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व है, इवन साइनसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। मोस्टली पेशेंट साइनोसाइटिस के साथ भी प्रेजेंट करेगा विद अदर सिस्टेमिक वेस्कुलरिटीज। गुड पास्चर सिंड्रोम, जस्ट लंग एंड किडनी, नो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, right? No saddle nose, no sinuses, no sinusitis, no inflammation of sinuses. अच्छा, तो क्या चीज है दोनों को डायग्नोज, हम डायग्नोज कब करेंगे वैगनर्स को? हम कब चाहेंगे कि अब वैगनर्स को डायग्नोज करना चाहिए? उस सूरत में जब हमें
सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस मिलेगा जिसमें किडनी एंड लंग और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा। अगर हमें ये नज़र आता है तो फिर हम क्या करेंगे, ESR सब में ही ESR रेज्ड होगी, लेकिन ऑब्वियसली एक डेस्परेट टेस्ट है, हमें करवाना चाहिए ताकि हम देख सकें कि कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, कोई वेस्कुलाइटिस चल रहा है कि नहीं। तो एसिड रेट जो है वो बाकी सब में भी इंक्रीज ही होगा। पॉजिटिव रूमेटाइड फैक्टर नॉन स्पेसिफिक है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन इट। बेस्ट इनिशियल टेस्ट यहाँ पढ़ लें, एंटी प्रोटीनेज 3 एंटीबॉडी, जिसे C-ANCA भी कहते हैं। सो C-ANCA is the main test we rely on in Wegener's granulomatosis, because that's how we are going to diagnose Wegener's vasculitis. Most accurate test, kidney biopsy, but do not do it. It is most accurate, but do not do it, because we can even diagnose with the clinical symptoms and C-ANCA. And if we think कि हमें बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेसिव वेस्कुलाइटिस मिल रहा है, तो हमें फिर भी श्योर करना है कि कितनी तेज़ी से किडनी डैमेज हो रहा है। सो विल गो फॉर किडनी बायोप्सी। साइक्लोफॉस्फेमाइड स्टीरॉइड्स ऑलमोस्ट तकरीबन जितनी भी वेस्कुलाइटिस डिजीज़ हैं, एक दो छोड़ के, जैसे कि हेनक शॉनलाइन परप्यूरा, उसको छोड़ के बाकी सब में ऑलमोस्ट सिमिलर ही ट्रीटमेंट है। मे बी अब ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज हुआ हो, तो यू हैव द बुक, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। इसके साथ हमने गुड पास्चर डिस्कस किया था, सो आई विल गो फॉर गुड पास्चर फर्स्ट। मैंने क्या कहा था, ओनली द लंग एंड किडनी, ओनली द लंग एंड किडनी। इडियोपैथिक कॉज ऑफ लंग एंड रीनल डिजीज इज नो स्किन, नो स्किन और आई फाइंडिंग्स, राइट। कोई स्किन फाइंडिंग्स नहीं है, कोई आई फाइंडिंग्स नहीं है, कोई GI इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई जॉइंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। सो इसका मतलब है ये सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस नहीं था। इट इन्वॉल्व्स ओनली द टू सिस्टम्स। व्हिच वन? The kidney and the lung. That's it. No upper respiratory tract, no skin, GI joints or any other systems. Lung involvement, hemoptysis, it is very weak symptom, because the most important reason of hemoptysis in this world is bronchitis. Anything that makes you cough causes you to have hemoptysis, right? Anything. And the most important cause of cough is bronchitis. So ultimately the bronchitis is the main cause of cough in the whole world. So फिर हम ये नहीं कह सकते कि गुड पास्चर ऑब्वियसली सारी की सारी वेस्कुलाइटिस जो है वो दैट इफ इट इन्वॉल्व्स लंग तो इट मेक्स यू कफ। रीनल इन्वॉल्वमेंट, हीमाचूरिया, प्रोटीनयूरिया। ऑब्वियसली मैंने आपसे क्या कहा स्टार्ट में कि जितनी भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की डिजीज़ हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं, वो क्या करवा सकती हैं, वो आपको हीमाचूरिया करवा सकती हैं। रेड ब्लड सेल कास्ट आएंगे, RBCs आपको मिलेंगे। सो पर इसलिए आपको यूरिन में रेड ब्लड सेल्स मिल सकते हैं। सो प्रोटीनयूरिया, मॉडरेट प्रोटीनयूरिया, राइट, बिकॉज इट इज़ नॉट नेफ्रोटिक। बेस्ट इनिशियल टेस्ट, 2 tests are very important here, एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज टू टाइप 4 कोलेजन। ठीक है, टाइप 4 कोलेजन के अगेंस्ट एंटी बॉडीज़ हमें एलपोर्ट सिंड्रोम में भी मिलती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो फिर बेस्ट इनिशियल टेस्ट यहाँ पे क्या है, वेगनर्स में क्या था, C-ANCA, वो भी एक एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है। जैसे हमने ANA पढ़ा था, anti-DS DNA पढ़ा था, इस तरह C-ANCA भी है। ठीक है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ठीक है, सो फिर इसी तरह ही इसमें भी बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है, एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज टू टाइप 4 कोलेजन। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट लंग और किडनी बायोप्सी। क्या मिलेगा लंग और किडनी बायोप्सी में, लीनियर डिपॉजिट्स मिलेंगे। लेकिन देखें, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, इफ इट इज रिटन दैट मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, देन बायोप्सी ऑब्वियसली इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, बिकॉज इट डायरेक्टली shows what is the problem in the kidney, right? Because it is not an indirectly blood test, it is actually the visceral test, कि आपको directly आप viscera को देख सकते हैं कि उसमें क्या चल रहा है, right? लेकिन if we have any kind of blood test which is less invasive, less expensive, or even less painful a patient के लिए, so why we have to go for the biopsy first? We'll try the blood test first, right? So as same as the treatment for Wegener's, it is also steroids and plasmapheresis, but plasmapheresis हम steroids and cyclophosphamide, but plasmapheresis भी हमारे पास एक ऑप्शन है, will obviously
स्लफ ऑफ ऑल द एंटीबॉडीज जो कि हमारे नॉर्मल ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन थी जो किडनी की, उसके अगेंस्ट बन रही थी, तो हम एंटीबॉडीज को ही रिप्लेस कर देंगे बाय डूइंग प्लाज्माफेरेसिस। चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम, दो बातें चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम के बारे में दिमाग में बिठा लें, दो बातें, ठीक है। ये हर एक के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। सो दो बातें जो मैंने अभी तक ना वेगनस के बारे में कही हैं ना गुड पास्टर के बारे में कही हैं, वो मैं आपसे करूंगा चर्क-स्ट्रास के बारे में। क्या? एस्दमा एंड इयोसिनोफिल्स इन योर ब्लड, दीज टू थिंग्स। कहीं आपके दिमाग में चर्क-स्ट्रास वेस्कुलाइटिस आएगा, फौरन से क्लिक करना चाहिए एलर्जी, इयोसिनोफिलिया बिकॉज ऑफ एलर्जी एंड एस्दमा, ठीक है। एस्दमा, इयोसिनोफिलिया, एटोपी, एलर्जी, ये दो चीज़ें जो हैं ये आपको मिलनी चाहिए। ये एग्जैक्टली देख लें, सिमिलर प्रेजेंटेशन है वेगनर्स की, बट क्या है, न वेगनर्स में आपको एस्दमा मिलना ज़रूरी है, न वेगनर्स में आपको इयोसिनोफिलिया मिलना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो डिफरेंट है, ठीक है, इयोसिनोफिलिया मिल रहा है आपको लैब्स में, ठीक है, और चर्क-स्ट्रास में आपको सी एंका के साथ साथ मोस्टली समटाइम्स पी एंका भी मिलता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। चर्क-स्ट्रास में आपको सी एंका के साथ साथ पी एंका भी मिलता है, जो कि पी एंका आपको वेगनर्स में नहीं मिलेगा, मे बी आपकी बुक में मेंशन भी हो। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट बायोप्सी ऑफ द लंग, ऑब्वियसली ग्रैनुलोमास एंड इयोसिनोफिल्स आपको मिलेंगे क्योंकि इनकी डिपोजिशन हुई होगी मल्टीपल ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन्स पे। ट्रीटमेंट साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, as similar as for the veganers and with pasture. Polyarteritis nodosa, stroke in young. Vasculitis affects every organ except the lung. अभी तक हमने कोई ऐसे डिजीज डिस्कस नहीं की जिसमें हम कहें कि एक्सेप्ट लंग। सो फिर इसमें कौन सी चीज डिफरेंशिएटिंग हुई फ्रॉम चर्क-स्ट्रास, फ्रॉम वेगनर्स, फ्रॉम गुड पास्चर? लंग, ठीक है। लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, पैन में लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। ऑल्सो इट इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी, ऑल्सो एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस सी, बट मोस्टली विद द बी, राइट। ये भी सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस है। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व व्हाट? द GI, द जॉइंट्स, द रीनल सिस्टम, राइट। GI इन्वॉल्वमेंट हो रही है अगर पोलीआर्टराइटिस नोडोसा में, तो फिर आप देख लें कि आपको एब्डोमिनल पेन हो रही है। वाई? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर एब्डोमिनल आर्टरीज, मेसेंट्रीज, राइट। इसमें देखें टेस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट सूरल नर्व बायोप्सी, दैट्स इन द लंग, दैट्स इन द लेग, सूरल नर्व इट्स इन द लेग, बट ऑल्सो यू कैन डू angiography of the mesenteries of your abdomen. The biopsy and the angiography of the mesenteries, they show actually the beaded appearance, ठीक है, stenosis of mesentery with intervals. तो फिर अगर आप उसको एज अ होल देखेंगे तो beaded appearance of mesentery मिलेगी on angiography. Accurate test ultimately सूरल nerve biopsy, but do not do it. Treatment cyclophosphamide and steroids, सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैंने स्टार्ट में बताया था, एक्सेप्ट हेनक्सकॉनिन, यशकॉनिन, परप्यूरा। सिस्टेमिक डेपोजिशन ऑफ IgA, देयर आर टू IgA नेफ्रोपैथीज, IgA नेफ्रोपैथी डायरेक्टली बर्जेस डिजीज एंड बर्जेस डिजीज, दिस वन, एंड IgA नेफ्रोपैथी हेनक्सकॉनिन, परप्यूरा। सिस्टेमिक डेपोजिशन है IgA की इन मल्टीपल टिश्यूज because it is a multiple systemic disease. It also involves GI joints, it also involves skin, it also involves joints and GI and obviously the renal system, right? So फिर अगर हेनक्सकॉनिन परप्यूरा इस तरह होगा तो इसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि इसमें IgA डेपोजिशन है, राइट? IgA डेपोजिशन है, बायोप्सी करवाएंगे तो आपको IgA डेपोजिशन मिलेगी, बट आप ना इसमें बायोप्सी करवाएंगे ना कोई ट्रीटमेंट करवाएंगे, बिकॉज इट इज रिटन हियर, यू कैन सी रिजॉल्व्स स्पॉन्टेनियसली इफ द डिजीज is resolving on its own. Why do you have to give any steroids or cyclophosphamide or any kind of medication?
Why do you have to go for the biopsy or any kind of other diagnostic tests? You can diagnose with the clinical symptoms, right? With the all of your physical examinations, right? अगर आपको क्योंकि इसके लिए बहुत हेनोक्सकॉन परप्यूरा की बहुत ही एक अच्छी प्रेजेंटेशन है ऑन स्किन. सो अगर आपको स्किन पे प्रेजेंटेशन नजर आ जाए, आई थिंक ये देखें, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन आपको मिलती है हिप्स पे एंड लोअर लेग्स पे इन एडोलेसेंट और यंग पेशेंट. अगर आपको ये नजर आ गया तो उसका मतलब है ये हेनोक्सकॉन परप्यूरा है. आपको जरूरी नहीं है कि आप जाएं और जाके बायोप्सी करवाने की कोशिश करें और उसको साइक्लोफॉस्फेमाइड या स्टेरॉइड से ट्रीट करने की कोशिश करें. आपको जरूरत नहीं है. इन 1 to 2 वीक्स ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा. Steroids only when it is severe and progressive. Let me tell you here, steroids do not treat the IgA things. Steroids only treat the IgE and IgG things, right? So IgA is जो IgA diseases हैं, steroids are not are not the priority if we go for treatment. इतनी priority पे नहीं है. ठीक है, आप स्टीरॉइड्स देते तो हैं एज अ डेस्परेट मेजर टू डिक्रीज द सिम्टम्स, बट दे डू नॉट रिवर्स इट. एक्चुअली IgA को आप आर्टिफिशियली या ट्रीट करके रिवर्स नहीं कर सकते. इसकी बेस्ट एग्जांपल है बर्जेस डिजीज. बर्जेस डिजीज कभी भी रिवर्स नहीं होती बाय एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. इफ द डैमेज इज डन, इट इज डन. Deposition of IgA only in the kidney. So this is the one differentiating feature from Wegener's, from Good Pasture, from Chuck Strass, from Henox-Conn purpura. What it is? From polyarteritis nodosa. क्या differentiating है? Only lung. Only lung. No joints, no skin, right? No GI, no lung, no upper respiratory tract. The just and just kidney. Previously 2007-8 से पहले कहा, इसको एक नाम दिया जाता था, जैसे चर्क स्ट्रास को पहले कहा जाता था कि ये एलर्जिक एंजाइटिस है. ठीक है, क्योंकि ये एलर्जी की वजह से एक इन्फ्लेमेशन हो रही है आपकी जो आर्टरीज हैं, जो लो वेजल वेस्कुलाइटिस हैं, ठीक है, उनकी जो लो साइज, जो मीडियम, जो स्मॉल साइज वेस्कुलेटरीज हैं, उनको कहा जाता था कि ये जो एलर्जिक एंजाइटिस की वजह से हो रही हैं. ठीक है, तो अगर वेस्कुलाइटिस होता था स्मॉल वेजल्स में तो फिर उसको हम चर्क स्ट्रास पहले नहीं कहते थे, पहले हम एलर्जिक एंजाइटिस कहते थे, बाद में इसका नाम चर्क स्ट्रास पड़ गया. ठीक है, तो ये एज़्मा और इयोसिनोफिलिया बढ़ने की वजह से हम कहते थे कि बिकॉज एंजाइटिस इसलिए क्योंकि स्मॉल वेजल्स की इन्फ्लेमेशन है और एलर्जी की वजह से, सो इयोसिनोफिलिया बढ़ा हुआ है. दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ एलर्जी इन इट. कोई पैथोफिजियोलॉजी में एलर्जी होगी तो फिर हमसे कहते थे एलर्जिक एंजाइटिस. सिमिलरली बर्जेस डिजीज जो IgA नेफ्रोपैथी है, इसको आप देख लें, इट इज़ ओनली इन किडनीज. ठीक है, बर्जेस को अब IgA इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें भी एग्जैक्टली हेनोक्स-कॉन परप्यूरा की तरह डेपोजिशन है IgA की, और इट ऑल्सो अबंडेंट इन एशियन पेशेंट्स. IgA से याद रखें, एशियन. ठीक है, और फिर पहले हम इसको नाम दिया करते थे, मैं बात बीच में छोड़ गया, इसको पहले हम नाम दिया करते थे ये बिनाइन रिकरेंट हिमेचूरिया है. रिकरेंट हिमेचूरिया होता है और बिनाइन है. इट इज़ नॉट वेरी डेंजरस, इट इज़ जस्ट limited to the hematuria, but later on we see that it also leads to end stage renal disease. So फिर अगर ये end stage renal disease तक चला गया और अगर ये किडनी को इतना डैमेज कर रहा है तो उसका मतलब it is not benign obviously. अगर आपको ये यूरेमिक सिंड्रोम तक ले जाता है, अगर यूरीमिया तक ले जाता है, अगर ये आपको एंसेफेलोपैथिक तक ले जाता है तो उसका मतलब है इट इज़ नॉट बिनाइन. ऑब्वियसली इट इज़ इंसल्टिंग योर किडनी टू द लेवल ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज़. 40 to 50% ऑफ पेशेंट्स आपके जा सकते हैं एंड स्टेज के लिए. माइल्ड हिमेचूरिया रहता है 30% में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बिनाइन रिकरेंट हिमेचूरिया इन द पास्ट. सीरम IgA, वी कैन नॉट डायग्नोज इट on serum IgA. It is very vague because it is just only positive in 50% patients. Diagnosis with renal biopsy, obviously we can do renal biopsy, but do not do it because we can diagnose it with just the symptoms. What are the symptoms? उस पे आते हैं. एशियन पेशेंट्स होगा, यंग पेशेंट होगा, एडोलेसेंट पे होगा, यंग पेशेंट होगा, और फेरेंजाइटिस के 1 या 2 दिन के साथ फेरेंजाइटिस होगा और उसके 1-2 दिन के अंदर ही सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, हिमेचूरिया शुरू हो जाएगा. सो बिकॉज ये बिल्कुल
फेरेंजाइटिस के साथ हो रहा है तो इसको हम कहते हैं कि ये डिजीज सिनफेरेंजेटिक वेस्कुलाइटिस है, सिनफेरेंजेटिक, इनसिंक्रोनाइज्ड विद फेरेंजाइटिस, SYN, सिनफेरेंजेटिक. Within 1-2 days, within 24 hours after the pharyngitis. ट्रीटमेंट क्या है? माइल्ड प्रोटीनयूरिया होगा तो आप एस इनहिबिटर्स, क्यों? ऑब्वियसली किडनी प्रोटेक्टिव है, रीनल प्रोटेक्टिव है, रीनो प्रोटेक्टिव है, हमने एस इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ लिया अच्छे तरीके से. थेराप्यूटिकली एस इनहिबिटर्स एंड ARBs आर इंटरचेंजेबल. एस इनहिबिटर्स जब पेशेंट कफ करने लग जाता है एस इनहिबिटर्स की वजह से, तो फिर हम आर्ब्स पे चले जाते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर पे चले जाते हैं. थेरेप्यूटिकली दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं. Severe proteinuria होगा, steroids देंगे, but I have told you it does not resolve the problem because steroid effect on all just किस चीज पे? IgG and IgE. Thanks. So steroid effects on just the IgG, IgE. Thanks. IgA पे नहीं होगा. सो इसलिए सीवियर प्रोटीनूरिया में एज अ डेस्परेट मेजर हम स्टीरॉइड्स देंगे. थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ फिश ऑयल माइट हेल्प, कांट हर्ट. आई थिंक माइट हेल्प, बट क्या हर्ट करना है इसने? फिश ऑयल ने वो क्या नुकसान पहुंचाना? सो अगर देना चाहें तो दे भी सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज रिटन द क्वेश्चन मार्क हियर. IgA नेफ्रोपैथी, ये जो आपको ब्राइट से नजर आ रही हैं, ये IgA डिपॉजिट्स हैं. ये जो ग्रीनिश उसमें आपको ग्लोमेरुलस में ब्राइट ग्लोइंग सी चीज़ नज़र आ रही है आपको, जो ग्लोइंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये ग्लोइंग पार्टिकल्स IgA डिपोजिशंस हैं. पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एग्जैक्टली आफ्टर द फेरेंजाइटिस, बट आफ्टर 1 to 2 weeks. That was synpharyngitic 1 to 2 days, but it is after 1 to 2 weeks. हमने पहले भी एक दफ़ा पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को जिक्र किया था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको याद होगा. अगर आप ये कहें कि ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है, जी मेनली स्ट्रेप्टोकोकल है, बट एनी इन्फेक्शन कैन डू इट. एनी इन्फेक्शन आप नीचे देख लें, हेपेटाइटिस B and C, CMP, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, सब कुछ ही. स्मोकी कोला, वाई स्मोकी कोला एंड टी? बिकॉज ऑफ द प्रोटीनयूरिया एज वेल एज हेमाचूरिया. बिकॉज ऑफ दीज बोथ, इस वजह से हम इसे कहेंगे स्मोकी कोला एंड टी कलर्ड यूनियन है. बेस्ट इनिशियल टेस्ट्स, बहुत अच्छे टेस्ट्स हैं दो, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O टेस्ट एंड एंटी हाइलुरोनिक या एंटी DNase. ठीक है, ये दोनों अगर हम करवा लेंगे तो सिर्फ ब्लड टेस्ट से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को. सो फिर पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और IgA नेफ्रोपैथी बेजीज डिजीज बाकियों से कैसे डिफरेंशिएटिंग हुई? इन दोनों में फेरेंजाइटिस के बाद पोस्ट फेरेंजाइटिस हेमाचूरिया है. ठीक है, बाकी सब में ये नहीं था. लो कॉम्प्लीमेंट स्पेशली 3C3 सब में ही लो कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि सब में ही आपकी इम्यूनिटी एक्टिवेटेड होगी. हो क्या रहा है यार पोस्ट इन्फेक्शियस में? हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कहीं इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडीज बने और वो आपकी किडनी को जाके डैमेज कर रहे हैं. कहीं भी हुआ था, एंटीबॉडीज बने थे और उन्होंने जाके अटैक कर दिया आपकी किडनी पे एबनॉर्मली, और आपको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया. ठीक है, प्रेजेंट कैसे करेगा? यंग पेशेंट होगा, एडोलेसेंट पेशेंट होगा, मे बी हाइपरटेंशन एंड पेरीऑर्बिटल एडिमा के साथ प्रेजेंट करे, मे बी विद टी कलर्ड यूरिन, स्मोकी यूरिन, आपको विद पेरीऑर्बिटल एडिमा, हाइपरटेंशन इन यंग, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टी कलर्ड यूरिन. ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे? डायूरेटिक्स देने की कोशिश करेंगे. क्या है ये? सपोर्टिव मेजर है कि आप उसकी हाइपरटेंशन को कम करें, उसके एडिमा को कम करें, उसके पेरीऑर्बिटल एडिमा को कम करें. बेस्ट थेरेपी इज डायूरेटिक्स. पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो फेरेंजाइटिस होगा आपको यूँ मिलेगा. जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस होगा उसमें आपको कार्डाइटिस भी मिल सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी मिल सकता है. बट जो सिंपल फेरेंजाइटिस होता है उसमें आपको कार्डाइटिस एंड रोमेटिक फीवर भी मिल सकता है. इस तरह आप डिफरेंशिएट करते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस को एंड सिंपल फेरेंजाइटिस को. ठीक है, सिंपल फेरेंजाइटिस कैन कॉज यू टू हैव रोमेटिक फीवर एज वेल, बट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसके साथ आपको रोमेटिक फीवर नहीं मिलता है. अच्छा जी, मैं अब आपसे जो बात मैं स्टार्ट में करना चाहता था कि एक एक दो दो बातें सबकी सेपरेटली करूं, तो मैं अब आपसे एक एक दो दो बातें फिर से सबकी सेपरेटली करता हूं जो हमने अभी तक पढ़ ली हैं. देखें जी, वैगनर्स की बात हुई, वैगनर्स एंड गुड पास्टर की बात हुई. क्या बात हुई? वैगनर्स के बारे में मैंने आपसे क्या कहा?
बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये वेस्कुलाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी ज़िंदगी आगे भी मेडिसिन में ये चलेंगे, बहुत सारी और भी अगर आप हिमाटोलॉजी करें वहाँ भी ये डिस्कस होंगे, पैथोलॉजी में मेरे ख्याल से आपने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप इनके 2-2 3-3 लव्स डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स सबके याद रखें, बिकॉज दीज आर रियली वेरी कंफ्यूजिंग, आई एडमिट दैट। वेगनर्स, क्या बात हुई थी? सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस है, इट इन्वॉल्व्स जीआई, जॉइंट, स्किन एंड रीनल, राइट? ऑल्सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विद द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सो renal, lung, but upper respiratory tract as well, and the systemic vasculitis. Good pasture का क्या differentiation है veganers से? Good pasture का ये है कि only lung and kidney, it is not a systemic vasculitis. No renal, no skin, no eye, no joints. अच्छा, और इसके अलावा और क्या हो सकता है? और हिनॉक्स कॉन्वेंट परप्यूरा की बात या चर्क स्ट्रास की बात हुई। क्या बात हुई चर्क स्ट्रास की? कि एस्दमा, पी एंका, सी एंका एज वेल, एंड इओसिनोफिलिया। ना वेगनस में था ना गुड पास्चर में था, इओसिनोफिलिया एंड एस्दमा, राइट? अच्छा, पोस्ट स्ट्रेप में क्या था? पोस्ट स्ट्रेप में था एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और एंटी डीएनएज, राइट? और हाइपरटेंशन इन यंग पेशेंट्स विथ स्मोकी और टी कलर्ड यूरिन, पेरी ऑर्बिटल एडीमा, ठीक है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल 2 weeks after the pharyngitis, hematuria 2 weeks after the pharyngitis. Why tea colored? Why smoky urine? Because of the protein urea and hematuria both. That's why it is smoky colored urine. Hennus convent purpura क्यों differentiating है? यंग पेशेंट होगा, हिप्स एंड लेग्स पे आपको मिलेगा ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है जब आप बायोप्सी करवाते हैं। ये बल्कि ये वर्ड यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखें, ये जो वर्ड लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक इफेक्ट, ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि व्हाइट ब्लड सेल्स अटैकिंग योर स्किन, ठीक है? सो अगर आप वो जो स्किन लीजन्स हैं, हिनॉक्स कॉन्वेंट परप्यूरा की जो स्किन लीजन्स हैं, स्कॉनलेन परप्यूरा कह लें, स्कॉनलेन परप्यूरा कह लें, कोई बात नहीं, जो वो आप जो लीजन्स हैं उनको जब आप बायोप्सी करेंगे तो फिर वो बायोप्साइड लीजन्स से आपको ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक इफेक्ट मिल सकता है। IgA नेफ्रोपैथी है, हिनॉक्स कॉन्वेंट परप्यूरा, IgA डिपोजिशन है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व होगा। GI, स्किन, रीनल इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है? जॉइंट्स इन्वॉल्व कर सकता है। ये भी सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस है, जस्ट लाइक वेगनर्स, बट इट रिजॉल्व्स स्पॉन्टेनियसली एंड डज नॉट इन्वॉल्व अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वेगनर्स। बर्जेस डिजीज, व्हाई बर्जेस में आपको क्या मिलेगा? एशियन पेशेंट होगा, यंग पेशेंट होगा आफ्टर 1 to 2 days ऑफ द फेरेंजाइटिक इलनेस, राइट? इज जस्ट आफ्टर 1 to 2 days बायोप्सी करेंगे, आपको IgA डिपोजिशंस मिलेंगी। पोलीआर्टराइटिस नोडोजा, नॉट लंग, नॉट लंग, नॉट लंग, किसी में अभी तक मैंने ये बात नहीं की कि नॉट लंग, सब में है, इसमें लंग नहीं है, ठीक है? इसमें लंग नहीं है। एंजियोग्राफी होगी पोलीआर्टराइटिस नोडोजा में, आप मेसेंट्रीज देखेंगे, उसमें भी आपको एओर्टिक वेस्कुलाइटिस मिल सकता है, मेसेंट्रीज भी मिल सकती हैं। मेसेंट्रीज में अगर आप एंजियोग्राफी करवाएं तो बेरिड अपीयरेंस मिलेगी। सूरल नर्व बायोप्सी इज द एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। SLE के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है, चलो इनको फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिजीज़ थी, तो मैंने सोचा कि इनको 2 पार्ट्स में पढ़ा देता हूँ मैं आपको। तो बाकी जो बच गए हैं, एलपोर्ट सिंड्रोम, TTP, HUS, क्रायोग्लोबुलिनीमिया, इनके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 5-6 बातें इनके बारे में करेंगे ताकि ये सारी आपको याद रख सकें। इतनी आप याद रखें, लेक्चर में इनको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।